Welcome students in the classes of data manipulation and analysis. We learn the concept of database, and in that we learn different types of keys which is useful for creating the tables and give the constraints to the table, give some conditions to the table. So we will learn these types of keys in detail. Types of keys means it is a constraint which is given on the entity. It is an attribute or group of attributes whose values can be used to uniquely identify an individual entity is an entity set. Different types of keys which is useful to apply on the table for providing different types of conditions, some validation. So the keys are candidate key, super key, primary key, foreign key, unique key, and many more. So the first, that is candidate key. Now what is the candidate key? Candidate key is one kind of composite key. That means if you can apply a candidate key on a table, that means particular table field contain a unique record. If you required some field contain some unique record, so you can apply this candidate key on that particular field. Now this candidate key can apply for only one field or on one attribute, not more than one attribute or more than one rows. It is unique because no rows in a table may have the same value at any time. That means, just example, in a student table we contain the attribute like roll number, name, marks, and all the details related to the student. So when you enter a record, at that time if you enter a same roll number for different students, so it gives some error because it cannot be happen that same roll number contain different student. Always the roll number is unique for each and every student. That means कि कभी भी एक रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकता, हर एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर डिफरेंट ही होगा. दैट मीन्स रोल नंबर को मुझे यूनिक बताना है, पर जब मैं एंट्री करूँगी तो बाय मिस्टेक में डुप्लीकेट एंट्री कर सकती हूँ. सो जब भी मैं डुप्लीकेट एंट्री करूँगी एट दैट टाइम मुझे एरर जनरेट होनी चाहिए. सो द कैंडिडेट की is give you this type of facility to apply on attribute, that attribute does not contain any duplicate values. So for example, this employee table, and the employee table contain employee ID, first name, last name, SI number, address, phone number, birth date, salary, and department ID. So over here this employee ID contain this employee identify the number is unique. एम्प्लॉय की आईडी कभी भी रिपीट नहीं हो सकती. सो दिस एम्प्लॉय आईडी एंड SIN नंबर, दैट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो वो भी यूनिक हो सकता है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं आ सकता. सो इन द एम्प्लॉय टेबल वी क्रिएट टू कैंडिडेट की, दैट इज EID एंड SIN. सो दिस टू आर द कैंडिडेट की. सो इट्स जस्ट सिंपल. कैंडिडेट की मीन्स आप जो भी टेबल में जो भी एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की अप्लाई करोगे, वो एट्रीब्यूट की वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती. इट मस्ट बी यूनिक ऑलवेज. सेम वे सुपर की. नाउ सुपर की क्या है? सुपर की दैट मीन्स द सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल. टपल मीन्स व्हाट? टपल मीन्स अ रो. एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको सुपर की असाइन कर सकते हैं, और सुपर की को हम सुपर सेट ऑफ प्राइमरी की बोल सकते हैं. सो इट्स जस्ट सुपर की, दैट मीन्स इट विल आइडेंटिफाई अ यूनिक रो. पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर की यूज होती है. नाउ जस्ट एग्जाम्पल, दिस स्टूडेंट नंबर फ्रॉम दिस टेबल, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम इज सम एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल ऑफ स्टूडेंट. So from that, student name
मे बी अ रिपीटेड स्टूडेंट नेम, एक स्टूडेंट के 2-3 नेम एक क्लास में हो सकते हैं, बट क्या स्टूडेंट नंबर एक क्लास में रिपीट हो सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो सेम वे this is the super key assigned to this student number. Fine. Now you can see like that जो candidate key है, that candidate key is always a super key. Candidate key super key ही होगी, but कभी भी super key candidate key नहीं हो सकती है. फाइन, आप कैंडिडेट की को सुपर की बोल सकते हैं, पर सुपर की को कैंडिडेट की नहीं बोल सकते. नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट की for table creation in practical session, that is a primary key. Now what is it? Primary key is used to uniquely identify each and every record. आपके टेबल में रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की यूज होती है. कैंडिडेट की एंड सुपर की इज यूज फॉर DBMS, बट प्रैक्टिकल सेशन के लिए आपको प्राइमरी की यूज करनी है. ना प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की एंड इट इज ऑलवेज वन इन the table. In one table, only one primary key is assigned and it is assigned a unique value. As well as primary key does not allow the null value. कोई भी फील्ड में वैल्यू अगर आपकी छूट जाए तो प्राइमरी की अगर असाइन की होगी तो इट गिव यू द एरर, तुरंत आपको बताएगा कि इसमें वैल्यू डालनी है. सो द प्राइमरी की इज व्हाट, आप जो भी फील्ड को एट्रीब्यूट को प्राइमरी की दोगे तो वो फील्ड की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती और नल नहीं हो सकती. दैट मीन्स अ प्राइमरी की यूज टू असाइन अ रिकॉर्ड यूनिकली एज वेल नॉट नल. नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकता. दैट इज द प्राइमरी की. नाउ द ओनली वन टेबल कंटेन वन प्राइमरी की. इफ मोर देन वन प्राइमरी की इज अ वन टेबल, दैट मीन्स इट क्रिएट अ कॉम्पोजिट की. जब एक से ज्यादा प्राइमरी की आप एक टेबल में बनाओगे तो वो प्राइमरी की नहीं रहेगी, उसको कॉम्पोजिट की बोलेंगे. So, primary key is used only one in a one table. Now, primary key is more important for create a relationship between the table. जब आपको 2 और 3 टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, ज्वाइन करने हैं टेबल, तो आपको प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी. फाइन, यस. नाउ आफ्टर द प्राइमरी की, नेक्स्ट वन इज द composite key. Now, what is the composite key? As I already told, in a one table only one primary key is allowed, but if you create more than one primary key in a single table, that means it is known as a composite key. जब एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की बन जाती है तो उसको हम composite की बोलेंगे. For example, see over here, this is a student table. It contains student ID, student name, age and phone number. So हम फोन नंबर को तो ऐसा नहीं कर सकते कि सबका फोन नंबर यूनिक हो. एज भी ऐसा नहीं हो सकता कि सबका यूनिक हो, रिपीट हो सकता है. नेम भी रिपीट हो सकता है. कौन सी चीज रिपीट नहीं हो सकती? स्टूडेंट आईडी. सो वी कैन मेक अ स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की. यस, सेम वे ओवर हियर आई कैन मेक स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी. बोथ फील्ड मेक प्राइमरी की टुगेदर. जब दोनों फील्ड एक साथ प्राइमरी की बनती है तो इट इज नोन एज अ कॉम्पोजिट की. उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट की. Fine. Now after that, next is a unique. Unique is same as a primary key, but the one difference between the unique and primary key is that primary key does not allow the null value and does not allow the duplicate. Same way, unique does not allow the duplicate, but unique allow the null value. Unique duplicate value का allowed नहीं करता है, but आपको अगर नल वैल्यू छोड़नी है तो यूनिक विल एक्सेप्ट द नल वैल्यू. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द यूनिक की. प्राइमरी की अलाउ यूनिकनेस एंड नॉट नल. सेम वे यूनिक वैल्यू अलाउ द यूनिक एंड नल. दैट मीन्स कि प्राइमरी की आपकी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अलाउ नहीं करती है, प्लस नल वैल्यू को भी अलाउ नहीं करती. नल मतलब नथिंग. इट्स नॉट जीरो, इट्स नॉट स्पेस. नल मीन्स नथिंग. आप फील्ड में कुछ नहीं डालोगे, दैट मीन्स इट्स नल. सो प्राइमरी की डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेशन एंड डज नॉट अलाउ द नल वैल्यू, बट यूनिक की डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेशन. यूनिक की डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती है, बट इट अलाउ द नल वैल्यू. सो दिस इज द यूनिक की. नाउ द नेक्स्ट इज द फॉरेन की, वेरी इंपॉर्टेंट की आफ्टर द प्राइमरी की. फॉरेन की किसके लिए है? फॉरेन की को आप रेफरेंस की भी बोल सकते हैं. फॉरेन की मीन्स इट इज यूज
to create a relationship between more than two tables, then the foreign key is used. See over here, this is a student and this is the student course. Now I need the student number over here with the course. So from this student number I can take this student table. So over here this student number is a reference key from this student. over here यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में मैंने स्टूडेंट नंबर को प्राइमरी की बनाया है, तो मैं दूसरे टेबल में ये स्टूडेंट नंबर को क्या बना सकती हूँ, फॉरेन की और रेफरेंस की। दैट मीन्स यहाँ पे जितने रिकॉर्ड्स आप डालोगे उसके अलावा रिकॉर्ड आप यहाँ पे ये टेबल पे एंट्री नहीं कर सकते। फॉरेन की को आप रेफरेंस की बोल सकते हैं। नाउ फॉरेन की आप तभी दे सकते हो जब आप कोई टेबल में प्राइमरी की और यूनिक की बनाओगे। जस्ट सिंपल एग्जांपल, स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाई है और वही स्टूडेंट नंबर मुझे स्टूडेंट कोर्स नाम के टेबल में चाहिए, तो मुझे वो स्टूडेंट नंबर को रेफरेंस की और फॉरेन की बनाना पड़ेगा कोर्स टेबल में। पर कोर्स टेबल में मैं स्टूडेंट नंबर को रेफरेंस की कब बना सकती हूँ, जब मैंने स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नंबर को प्राइमरी की बनाई होगी या यूनिक की बनाई होगी, तो ही मैं स्टूडेंट नंबर को स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर रेफरेंस की बना सकती हूँ। Fine. So foreign key is must use for linking more than two tables, or you can use the foreign key to link two or more than two tables together. Yes. Now it is also known as a reference key. So are you understand the different types of key? That is the candidate key, super key, प्राइमरी की, कंपोजिट की। जब दो प्राइमरी की एक साथ होगी तो वो कंपोजिट की बन जाएगी, अदरवाइज एक टेबल में एक ही प्राइमरी की पॉसिबल है। यूनिक की, देन फॉरेन की, एंड द लास्ट वन इज द नॉट नल की। यस, नॉट नल की क्या होती है कि अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर रिकॉर्ड यूनिक चाहिए, तो जब मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड यूनिक चाहिए एट दैट टाइम मुझे वो फील्ड को क्या दे देना है, नॉट नल। अगर मैं कोई फील्ड के एट्रीब्यूट में नॉट नल लिख देती हूँ और एंट्री करते वक्त अगर मैं वो फील्ड की एंट्री करना भूल गई, इट विल गिव मी द एरर एट दैट टाइम दैट यू कैन नॉट लीव दिस फील्ड ब्लैंक और यू कैन नॉट लीव दिस फील्ड नल। सो नॉट नल मीन्स आप जो भी फील्ड पे नॉट नल असाइन करोगे वो फील्ड कंपलसरी फील्ड हो जाएगी, जिसके अंदर आपको कंपलसरी डेटा, कंपलसरी वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। सो ओवर हियर वी कैन लर्न कंपोजिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, यूनिक की एंड द नॉट नल की। दिस ऑल कीज आर वेरी मच important for your practical session. Fine, all of you? Okay, I hope you understand these types of keys. Thank you.